we start our second chapter of chemistry called Structure of Atom. The first chapter is completed and second chapter is Structure of Atom. In this chapter, first of all, we discuss about the atom, and we all know that what is atom, what is molecule, and same we will repeat after some time in the second chapter also. Before starting the atom, we discussed the different kinds of models, and in the first case, the first model of matter is proposed by John Dalton. John Dalton in 1808 century. So, according to John Dalton, what is the matter? क्लियर, हम बात करेंगे व्हाट इज द मैटर, कि उन्होंने कहा था मैटर क्या होता है. ही सेड दैट मैटर कंसिस्ट द स्मॉल पार्टिकल. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट द स्मॉल पार्टिकल. क्लियर. सेकेंड थिंग, he proposed that these small particles are very hard in nature. You can say this is the hard and it have the spherical shape. He said that the matter is consist by a small particle, and these small particles are very hard and spherical in shape. And he also proposed that these particles are structureless. Okay? These three things are the main postulates from the Dalton atomic theory. And these small particle, this hard spherical shape particle is called atoms. It's called atom. और इन्होंने क्या कहा, एटम का शेप कैसा है, गोल, स्फेरिकल इन नेचर. ठीक है, एटम का शेप कैसा है, स्फेरिकल नेचर है. ठीक है, और इन सब चीजों से क्या मिलके बना होगा, आपका मैटर बना होगा. ठीक है, बट इन बिटवीन द 19th century we have a concept that the atoms are not divisible. Atoms are not divisible, and this is the main demerits of this Dalton atomic theory. ठीक है, डाल्टन ने क्या कहा कि जो आपका एटम था, ये जो हार्ड स्फेरिकल नेचर का जो एटम है आपके पास, ये डिविजिबल नहीं है. दैट मीन एटम ही क्या है आपका, द मेन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर. ठीक है, उन्होंने कहा जो आपका एटम होगा वही क्या होगा, किसी मैटर का बेसिक यूनिट होगा. दैट मीन उसके बाद आपके पास कोई अदर सब यूनिट पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होंगे इन दिस एटम. But nowadays we know that this atom can further divided into electron, proton, neutron, meson, positron, antineutrino. Clear? That means we have now a thing is that this atom can be divisible, and this atomic particle, this basic particle is called subatomic particle. This called subatomic particles. क्लियर, यानी कि अब हमें क्या पता है कि आपका जो एटम्स होगा वो भी क्या है, आपका बहुत सारी पार्टिकल्स में क्या है, डिविजिबल है आपके पास. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरीज ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और हमारे पास इस चैप्टर के अंदर केवल 3 ही आपके पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. कैसे इनका डिस्कवरीज हुआ, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इसमें यूज किया हम लोगों ने. ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, इनका कैरेक्टर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर कैसा है, या प्रोटॉन कैसा है, न्यूट्रॉन कैसा है. ठीक है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, ब्रॉडली डिस्कस करेंगे. And in our section, the first things we have the electron. Clear? That means you can say the discovery of electron. ठीक है,
We all know that the electron is discovered by J.J. Thomson. Clear? इन्होंने कैसे किया? In this section we discuss, या हमने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के अंदर एक चीज पढ़नी है, that called the properties of cathode rays. The main important part of this discovery is called the cathode rays and the properties of cathode rays. We have the first is the discovery of electrons, and under the section of discovery of electron we have the properties of cathode rays. First of all समझते हैं cathode है क्या. ठीक है. In your previous classes, in 10th class, you have a activity based on, you can say, the production of NaOH. ठीक है. You can say the electrolysis process. आपने वहां पर कहा था आपके पास क्या होता है, दो रॉड्स होती हैं. ठीक है. दो रॉड्स में क्या होती है, वन इज द कैथोड एंड वन इज द एनोड. ठीक है. जिसे आप कहते हैं कंबाइंडली इलेक्ट्रोड. ठीक है. इलेक्ट्रोड हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में. हमने कहा था इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. आपने कहा था इलेक्ट्रोड्स आर दी मेटल रॉड. ठीक है. होती क्या है, मेटल रॉड होती थी, वहां पे मेटल रॉड्स होती थी जो क्या होती थी, अपने ही आयन के सॉल्यूशन में डिप्ड होती थी. सपोज दिस इज द मेटल रॉड इज मेड बाय जिंक and this zinc rod is dipped in the aqueous solution of zinc sulfate ZnSO4. ठीक है. होता क्या था, अपने ही आयन के सॉल्यूशन में डिप्ड होती थी, तो यहां पर क्या आता था, आपके आयन्स आते थे. SO4 रिप्लेस हो जाता था एंड दिस वन इज द आयन एंड दिस इज कॉल्ड द जिंक इलेक्ट्रोड. क्लियर. ये तो था इलेक्ट्रोड वहां पे, और सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड वी आर यूजिंग हियर. वन इज द कैथोड एंड वन इज द एनोड. ठीक है. ये आपके इलेक्ट्रोड थे मेटल के. ठीक है. स्पेसिफिक नेम हमने दिया, वन इज द कैथोड एंड वन इज द एनोड. ठीक है. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में J.J. थॉमसन ने क्या किया, ही टुक वन डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड बाय द गैसेस एंड ही अप्लाइड a high amount of pressure inside the test tube, inside the discharge tube, and connected these two electrode with the high voltage. ठीक है. ऐसा जब उन्होंने किया और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई टेस्ट ट्यूब के अंदर, या कैन से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो जो आपका गैसेस थी वो क्या हो गया, आपका वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग गई एंड दे मूविंग इनसाइड द ट्यूब्स. क्लियर. तो वहीं से क्या कंसेप्ट आया, कैथोड और रेस का. अब वो क्या गैसेस क्या थी आपका, तो मूवमेंट कर रही हैं. ठीक है. गैसेस आर द मूवमेंट्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब. तो उसे आपने कहा दिस आर कॉल्ड द कैथोड रेस, और यू कैन से द कैथोड पार्टिकल. ठीक है. क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दी कैथोड. ठीक है. कहां से निकल रही है, कैथोड से निकल रही हैं. तो उसे आपने कहा दीज आर कॉल्ड कैथोड रेस और कैथोड पार्टिकल्स. ठीक है. कहां की तरफ को मूव कर रही है, एनोड की तरफ को मूव कर रही है. ठीक है. सो नाउ देयर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. द फर्स्ट प्रॉपर्टीज कैथोड रेज इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. हमेशा कैथोड रेज कैसे ट्रेवल कर रही थी इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, एज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. कैसे पता चला, he proposed that when a object is placed inside the tube, this perform a shadow, या this cast a shadow. वो क्या बना रहा है, एक shadow बना रहा होता है. ठीक है. सपोज एक आपने ऑब्जेक्ट रखा टेस्ट ट्यूब के अंदर, या यू कैन से द ट्यूब के अंदर आपने क्या रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, तो वो क्या बनाएगा, उसकी शैडो बना रहा होता है. और शैडो किस डायरेक्शन में बनेगा, इन दी अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. कहां बनेगा, इन दी अपोजिट डायरेक्शन. सो वी कैन से दैट द कैथोड रेज इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. सेकेंड वी हैव दीज आर नॉट विजिबल. ठीक है. दैट मीन जो कैथोड रेज इनसाइड द ट्यूब ट्रेवल कर रही होती हैं, दे आर इनविजिबल, बट दे आर ऑब्जर्व दैट सो मैनी ऑफ एक्टिविटीज या सो मैनी ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आपके पास होते हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि दीज आर दी
प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। वो क्या होती हैं? लाइक यू हैव द फॉस्फोरेसेंट, ठीक है, लाइक यू हैव द ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। क्या होता है अगर आप इस कैथोड रेस को ट्रेवल करवा रहे हैं इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, तो आपने क्या किया, कुछ लुमिनेसेंस या सॉरी इन द फॉस्फोरेसेंस मटेरियल, यानी कि यू हैव अ जिंक सल्फाइड ZnS, इसकी एक कोटिंग कर दी जाती है इनसाइड द ट्यूब, एंड व्हेन these cathode rays are strike with this material, it give a spot of light, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, लाइट का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमारा क्या होता है टेलीविजन के अंदर होता है, ठीक है। दैट मीन व्हेन दिस रेज आर स्ट्राइक विद दिस मटेरियल, इट कैन बी लाइट अप। क्या मिलेगा, हल्की से आपको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। वो लाइट कैसा होगा, जैसे आप देखते हैं एट द नाइट व्हेन वी ट्रेवल इन बाइक या योर कार, तो आपके जो स्ट्रीट पर लगे रहते हैं, स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ पोल्स लगे रहते हैं, दे इमिटेड लाइट व्हेन योर हेडलाइट इज स्ट्राइक विद दीज पोल्स, ठीक है। तो पोल्स क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए चमकना स्टार्ट करते हैं। वो चमकते क्यों हैं, बाय दिस फॉस्फोरेसेंस कंसेप्ट, ठीक है। और वो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे ही आप लाइट क्या कर रहे होते हैं, उस पोल पर स्ट्राइक कर रहे होते हैं, वो पोल चमकता है, और आफ्टर सम टाइम व्हेन द लाइट इज डिसअपियर, दिस शाइनिंग ऑल्सो डिसअपियर। क्लियर। द थर्ड थिंग्स वी हैव प्रोड्यूस द मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है कौन, कैथोड रेज। कैसे प्रोड्यूस करेगा, सपोज आपने कोई पेडल व्हील इन कैथोड रेज के बीच में रख दी, तो पेडल व्हील क्या करेगा, इट रोटेट, ठीक है। क्या दिखा रहा है, रोटेशन दिखा रहा है, रोटेशन दिखा रहा है। दैट मीन आप क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मैकेनिकल वर्क वहां पर कर रहे हैं। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and the magnetic field, you can say the electric field as well as magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negative charge particle. Clear? So it says that these cathode rays have the negative tendency, ठीक है। कैसी टेंडेंसी है, नेगेटिव टेंडेंसी है, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज इनसाइड द इलेक्ट्रिकल और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक दैट, ठीक है। सो वी कैन से दैट दीज कैथोड रेज आर नेगेटिव इन नेचर एंड दीज कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। Clear? So this is all about your properties of cathode rays and the discovery of electron. That means these cathode rays is called electron. और कैसा नेचर है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव नेचर है। क्यों, बिकॉज कैथोड रेज कैसी होती हैं, नेगेटिव नेचर होता है कैथोड रेज का। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। द फर्स्ट थिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द जे थॉमसन कैलकुलेटेड द चार्ज एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला, आपका रेशियो निकाला, इलेक्ट्रॉन रेशियो, इलेक्ट्रॉन रेशियो, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड E/m रेशियो। दिस E/m स्टैंड फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। दैट मीन ये क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो, एंड दिस इज कम्स इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg. This is the E/m, that means the charge of electron. You can say the ratio of charge of electron and the mass of electron. This is E/m. The second thing, second calculation under of electron is comes the charge of electron. The second is the charge of electron. For the charge of electron, a experiment is called the Millikan oil and drop method. That means the Millikan's oil and drop method. By Millikan oil and drop method, the charge of electron is comes equal to 1.60
into 10 to power minus 19 coulomb. 19 coulomb. This C is stand for the coulomb. That means the unit of charge. क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया 1.60 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कैसे निकाला आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? बाय द मुलिकन ऑयल एंड ड्रॉप मेथड. ठीक है, मुलिकन कौन थे? इज अ साइंटिस्ट. ही कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. क्लियर? एंड थर्ड थिंग्स इज दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जे थॉमसन ने? थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन हैव द टू वैल्यूज कॉल ई, दैट मीन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड इज ई बाय एम. ई बाय एम इलेक्ट्रॉन मास रेशियो. ही डिवाइडेड दिस ई by m value and calculated mass. That means you can say the mass of electron is equal to E by m. E कितना आपके पास है? E आपके पास है 1.60 into 10 to power minus 19 coulomb upon you have the E by m ratio 1.76 into 10 to power minus 11 coulomb kg inverse. Coulomb kg inverse, and this comes equal to 9.11 into 10 to power minus 31. This C is cancelled by C and kg is going up. It comes equal to kg. That means the mass of electron is 9.11 into 10 to power minus 31 kg. This is the mass of electron, the charge on electron, and this is the charge mass ratio of electron 1.67 into 10 to the power 11 coulomb per kg. So this is all about your electron. So you can say that what is electron now? So you can say that the electron is a negative charged particle having the charge 1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the mass is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg is your electron. ठीक है, अब चार्ज कैसा होता है इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव चार्ज होता है, हम बात कर चुके हैं. इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. सो कैन से इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? माइनस 1.60 इंटू 10 टू the power minus 19 coulomb. Why? Because the definition says that the cathode rays is negative, so we can say that the electron is a negative charge particle having the charge this one and the mass equal to this one, and this called the electron. Clear? So this is all about the discoveries of electron. The first subatomic particle, electron.